दैनिक सवेरा देख रहे हो। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤੰਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈ ਆ। इस अलावा की कहना मनीष सिसोदिया होना था पहली बार नववर्ष का इस तरह से आयोजन कर रही है और मैं पंजाब सरकार को, भगवंत मान जी की सरकार को, आम आदमी पार्टी को भी और साथ साथ विजय शर्मा जी जो कि सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी बधाई देता हूँ कि इतना शानदार आयोजन किया। पहली बार पंजाब में इस तरह का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है और मैंने यहाँ सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ साथ यही संदेश दिया कि सच्चे सनातन को, सही सनातन को पहचाने, सत्ता की हवस में डूबे हुए फर्जी सनातनियों से सनातन को बचाएं, खुद को भी बचाएं। क्योंकि जो फर्जी सनातनी का चोला ओढ़ के सत्ता की हवस में आते हैं, आपके पास आपका वोट लेके जाते हैं, आपका टैक्स लेके जाते हैं, अपने दोस्तों का दुनिया भर में कारोबार चलवाते हैं, सीबीआई और ईडी के जरिए उसका दुरुपयोग करके भगवान के मेहर से जो ताकत मिलती है उसका दुरुपयोग करके अपने विपक्षियों को जेल में भिजवाते हैं और जो वोट काट के, लाखों लोगों के वोट काट के सत्ता की हवस को पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों से सनातन को बहुत खतरा है। ऐसे नकली सनातनियों से बच के रहें। ये सनातन के दुश्मन है, इनसे बच के रहें। भारत को सनातन के रास्ते पे चल के बचाया जा सकता है, लेकिन सनातन को पहले ऐसे नकली लोगों से बचाना पड़ेगा। सर, आज सनातन धर्म का नव वर्ष है, यहाँ से आज शुरुआत हुई है, क्या ऐसे 2027 का शंखनाद हो सकते हैं? 2027 का शंखनाद तो भगवंत मान जी ने उसी दिन कर दिया था जब अपने सारे चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार बनते ही अमल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं किया कि 5वें साल में जाके सब कुछ करेंगे। एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने से लेके जिस दिन पहला मोहल्ला क्लिनिक खुला, हमने जनता के वादे पूरे किए। जिस दिन 300 यूनिट 600 यूनिट बिजली फ्री हुई, जनता के वादे पूरे हुए, जनता की तो वहीं से शंखनाद था। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ दैनिक सवेरा टीवी। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। दैनिक सवेरा ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤੰਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈ ਆ। इस अलावा की कहना मनीष सिसोदिया होना था पहली बार नववर्ष का इस तरह से आयोजन कर रही है और मैं पंजाब सरकार को, भगवंत मान जी की सरकार को, आम आदमी पार्टी को भी और साथ साथ विजय शर्मा जी जो कि सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी बधाई देता हूँ कि इतना शानदार आयोजन किया। पहली बार पंजाब में इस तरह का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है और मैंने यहाँ सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ साथ यही संदेश दिया कि सच्चे सनातन को, सही सनातन को पहचाने, सत्ता की हवस में डूबे हुए फर्जी सनातनियों से सनातन को बचाएं, खुद को भी बचाएं। क्योंकि जो फर्जी सनातनी का चोला ओढ़ के सत्ता की हवस में आते हैं, आपके पास आपका वोट लेके जाते हैं, आपका टैक्स लेके जाते हैं, अपने दोस्तों का दुनिया भर में कारोबार चलवाते हैं, सीबीआई और ईडी के जरिए उसका दुरुपयोग करके भगवान के मेहर से जो ताकत मिलती है उसका दुरुपयोग करके अपने विपक्षियों को जेल में भिजवाते हैं और जो वोट काट के, लाखों लोगों के वोट काट के सत्ता की हवस को पूरा करना चाहते हैं,
उन लोगों से सनातन को बहुत खतरा है। सर आज ऐसे नकली सनातनियों से बच के रहें। ये सनातन के दुश्मन हैं, इनसे बच के रहें। भारत को सनातन के रास्ते पे चल के बचाया जा सकता है, लेकिन सनातन को पहले ऐसे नकली लोगों से बचाना पड़ेगा। सर आज सनातन धर्म का नव वर्ष है, यहाँ से आज शुरुआत हुई है, क्या ऐसे 2027 का शंखनाद मान सकते हैं? 2027 का शंखनाद तो भगवंत मान जी ने उसी दिन कर दिया था जब अपने सारे चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार बनते ही अमल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं किया कि 5वें साल में जाके सब कुछ करेंगे। एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने से लेके जिस दिन पहला मोहल्ला क्लिनिक खुला, हमने जनता के वादे पूरे किए। जिस दिन 300 यूनिट 600 यूनिट बिजली फ्री हुई, जनता के वादे पूरे हुए, जनता की तो वहीं से शंखनाद था। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤੰਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? पहली बार नववर्ष का इस तरह से आयोजन कर रही है और मैं पंजाब सरकार को, भगवंत मान जी की सरकार को, आम आदमी पार्टी को भी और साथ साथ विजय शर्मा जी जो कि सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी बधाई देता हूँ कि इतना शानदार आयोजन किया। पहली बार पंजाब में इस तरह का आयोजन सरकार द्वारा कराया जा रहा है और मैंने यहाँ सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ साथ यही संदेश दिया कि सच्चे सनातन को, सही सनातन को पहचाने, सत्ता की हवस में डूबे हुए फर्जी सनातनियों से सनातन को बचाएं, खुद को भी बचाएं। क्योंकि जो फर्जी सनातनी का चोला ओढ़ के सत्ता की हवस में आते हैं, आपके पास आपका वोट लेके जाते हैं, आपका टैक्स लेके जाते हैं, अपने दोस्तों का दुनिया भर में कारोबार चलवाते हैं, सीबीआई और ईडी के जरिए उसका दुरुपयोग करके भगवान के मेहर से जो ताकत मिलती है उसका दुरुपयोग करके अपने विपक्षियों को जेल में भिजवाते हैं और जो वोट काट के, लाखों लोगों के वोट काट के सत्ता की हवस को पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों से सनातन को बहुत खतरा है। सर आज ऐसे नकली सनातनियों से बच के रहें। ये सनातन के दुश्मन हैं, इनसे बच के रहें। भारत को सनातन के रास्ते पे चल के बचाया जा सकता है, लेकिन सनातन को पहले ऐसे नकली लोगों से बचाना पड़ेगा। सर आज सनातन धर्म का नव वर्ष है, यहाँ से आज शुरुआत हुई है, क्या ऐसे 2027 का शंखनाद मान सकते हैं? 2027 का शंखनाद तो भगवंत मान जी ने उसी दिन कर दिया था जब अपने सारे चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार बनते ही अमल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं किया कि 5वें साल में जाके सब कुछ करेंगे। एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने से लेके जिस दिन पहला मोहल्ला क्लिनिक खुला, हमने जनता के वादे पूरे किए। जिस दिन 300 यूनिट 600 यूनिट बिजली फ्री हुई, जनता के वादे पूरे हुए, जनता की तो वहीं से शंखनाद था। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ।